Hello students, welcome back in your EVS class. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So I am your teacher Miss Pooja here again with a new topic. So without wasting time, let's start. So in the last class we completed with our chapter 4, water a wonderful liquid, right? So today we will start with our unit 3, the world around us, and chapter 5, living and non-living things. So let's start. Living and non-living things. The world around us is full of things, big and small. Things that exist freely in nature are called natural things, while those that are made by man for his use and convenience are called man-made things. All natural things are either living or non-living. Plants and animals, birds, insects, and even we human beings are examples of living things. Rivers and mountains are natural but are non-living things. Things such as books, toys, and many such things are man-made things. Let us understand how living things differ from non-living things. Living things breathe. All living things like humans, plants, and animals breathe air using different organs. Human beings, animals like cows, monkeys, and dogs breathe through their lungs. Fish breathe through their gills. Plants take in air through very tiny openings on their leaves called stomata. Non-living things do not breathe. Living things grow. All living things grow. A sapling or a baby plant mostly grows out of a seed and becomes a tree. Human babies and young ones of animals grow older, changing in shape and size too. Look at your photographs when you were born, then see your latest ones. You will notice that you have grown, haven't you? Non-living things do not grow. Living things need food and water to live. In addition to air, all living things need food and water to live. Plants prepare their own food. Animals get their food either from plants or from other animals. The deer feeds on grass, whereas the tiger eats deer and other animals for food. Birds feed on seeds, fruits, as well as small insects. Humans depend on both plants and animals for their food. Non-living things do not need food or water. Living things can move. All living things can move from one place to another in some way or the other. Many animals move in search of food, water, and shelter. Plants cannot move from one place to another, but do show some amount of movement in the form of blooming or growing in the direction of sunlight. Non-living things cannot move from one place to another on their own. We make non-living things move when we drive a car, fly a kite, or wipe our hands with a towel. Non-living things cannot move without help.
Living things sense their surroundings. All living things sense their surroundings and most often respond to it. They do this with the help of their sense organs such as eyes, ears, nose, skin, and tongue. Dogs have a very strong sense of smell and are often used to solve thefts and other crimes. Besides this, animals like cats and dogs are kept as pets for their affections and companionship. Some birds are also able to sense an oncoming danger. The touch-me-not plant closes its leaves as if shying upon anyone touching it. This happens because it is sensitive to touch. Non-living things cannot sense their surroundings. Living things reproduce. All living things reproduce young ones of their own kind. Animals reproduce either by laying eggs or by giving birth to their young ones. Most plants produce seeds. These seeds grow into baby plants when they get adequate sunlight, water, soil, and fresh air. Non-living things do not reproduce. Living things have a lifespan. All living things grow old and die. Some living things have a very short life, while some others live for several years. They all have a lifespan. A housefly lives for 20 to 30 days. A dog lives for 13 to 15 years. A tortoise lives for 150 years. Human beings live for 70 to 85 years. American redwood trees have a lifespan of 500 to 700 years. Non-living things have no life, so they do not die. So as you learned about the different living and non-living things, and you also learned about the characteristics of living things or the basic difference between the living and non-living things. So first of all, what the living things are? Living things are those things that have life on earth, right? Like human beings, plants, animals. They can breathe, they can reproduce, they can grow. They have life on earth. And non-living things are those things which don't have any life on earth, right? They can't grow, they can't reproduce, they can't breathe, they can't move. So this is the basic difference between a living and non-living things. So let's read about them. There are so many things around us. Some of them are living things while some are non-living things. हमारे पूरे एनवायरनमेंट में लिविंग थिंग्स होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, राइट? सो लिविंग थिंग्स, द थिंग्स दैट हैव लाइफ इन दैम आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स. Living things can be divided into two groups, animals and plants. All living things need food, water and air for survival. What living things need for their survival? They need food, water and air for their survival. And living things divide into two groups, animals and plants. Human being, plant, animal, insects, these are living things. Living things कौन सी होती हैं? The things that have life in them are called living things. So there are some features of living things. Living things breathe.
All living things breathe air to live. They breathe even when they are sleeping. All human beings, including animals, breathe through their nose. See, living things have life on earth, so सर्वाइवल के लिए, अर्थ में सर्वाइवल के लिए, रहने के लिए, what is the basic need? Basic need is air. We all need air to breathe. Without air we can't live. हम एयर के बिना नहीं रह सकते, हम ब्रीदिंग प्रोसेस के बिना जिंदा नहीं रह सकते, राइट? सो लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. लिविंग थिंग्स ब्रीथ करती हैं, ब्रीदिंग प्रोसेस करती हैं, राइट? फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स एंड इंसेक्ट्स ब्रीथ through the air holes on their body. Plants also breathe through the pores in their leaves called stomata. See, there are different organs of breathing. Human beings, including animals, breathe through their nose. हम अपनी नाक से सांस लेते हैं, समटाइम्स अपने माउथ से भी सांस लेते हैं, राइट? एंड फिश कहाँ से ब्रीथ करती हैं? फिश अपने गिल्स से ब्रीथ करती है. ये फिश के गिल्स होते हैं, यहाँ से ब्रीथ करती हैं फिशेस. एंड जो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं वो एयर होल से ब्रीथ करते हैं. जैसे ये दिखा रखे हैं ग्रास ऊपर के, ये एयर होल्स दिखा रखे हैं, यहाँ से ब्रीथ करते हैं. एंड जो प्लांट्स होते हैं हमारे, वो उनकी लीव्स पे जो ये पोर्स होते हैं उसे स्टोमेटा बोलते हैं, वो उससे ब्रीथ करते हैं. सो एवरी लिविंग थिंग्स breathe through different organs of their body, right? ह्यूमन बींग्स नोज से ब्रीथ करते हैं, माउथ से ब्रीथ करते हैं, फिश गिल से ब्रीथ करती हैं, इंसेक्ट्स होते हैं कुछ वो एयर होल से ब्रीथ करते हैं, एंड प्लांट्स स्टोमेटा से ब्रीथ करते हैं. लिविंग थिंग्स मूव. ऑल लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सम एनिमल्स मूव ऑन देयर लेग्स while some other crawl with their bodies. Fish swim in the water while birds fly in the sky with the help of their wings. See, living things के अंदर लाइफ होती है. सो उनके अंदर लाइफ होती है, वो जिंदा होते हैं, तो वो मूव भी कर सकते हैं वन प्लेस से अनदर प्लेस पे. सो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो तो विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स मूव करते हैं इजीली, राइट? एंड सम एनिमल्स मूव ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स एंड क्रॉल भी करते हैं. जैसे स्नेक क्रॉल करता है, रेप्टाइल्स, वैसे ही कुछ क्रॉल करते हैं अपनी बॉडी को. फिश स्विम करती हैं वाटर के अंदर, और बर्ड्स क्या करती हैं, वो फ्लाई करती हैं विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स. प्लांट्स डू नॉट मूव लाइक एनिमल्स एज दे आर फिक्स्ड एट वन प्लेस, बट सम ऑफ देयर पार्ट्स लाइक लीव्स एंड स्टेम शो मूवमेंट्स. अ सनफ्लावर टर्न्स इट्स फेस टुवर्ड्स द सन एंड अ टच मी नॉट प्लांट क्लोजेस इट्स लीव्स व्हेन टच्ड. इट इज़ अ काइंड ऑफ मूवमेंट. सी, प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स होते हैं. अब आप बोलोगे कि प्लांट्स भी तो लिविंग थिंग्स होते हैं, बट वो तो मूव नहीं करते. सो बट भले ही वो मूव नहीं करते जस्ट बिकॉज वो एक ही जगह ग्रो करते हैं, बट वो कुछ ऐसी फीचर्स होते हैं उनके अंदर जो वो शो करते हैं अपने मूवमेंट्स. लाइक जैसे सनफ्लावर होता है, अ सनफ्लावर टर्न्स इट्स फेस टुवर्ड्स द सन. सनफ्लावर होता है, आपने देखा होगा कभी, सन होता है जब वो सनफ्लावर बिल्कुल ऐसे खिल जाता है, एंड व्हेन द सनसेट होता है तब वो ऐसे मुरझा सा जाता है सनफ्लावर. तो इससे क्या पता चलता है? इससे प्लांट का मूवमेंट पता चलता है. वो लिविंग थिंग है एक, तभी तो ऐसा मूवमेंट हो रहा है. नॉन लिविंग थिंग्स कभी ऐसे कर सकते हैं? नहीं. आप अलमीरा को रख दो, अलमीरा होती है जैसे अलमारी होती है, उसको धूप के आगे रख दो, क्या वो धूप के जाने से मुरझा जाएगी? नहीं मुरझाएगी ना, कोई मूवमेंट शो नहीं होगा ना, जस्ट बिकॉज वो नॉन लिविंग थिंग्स है, उसके अंदर कोई लाइफ नहीं है. बट प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, इनके अंदर लाइफ है, दैट्स वाई दे शो दैट काइंड ऑफ मूवमेंट. टच मी नॉट प्लांट होता है, उसकी बहुत छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं, अगर आप उसको टच करोगे तो उसकी लीव्स ऐसे सुकड़ जाती हैं. लेट मी शो यू. सी, दिस इज़ द टच मी नॉट प्लांट. व्हेन वी टच the leaves of that plants, its leaf shrink. देखिए जैसे ये कैसे shrink हो रही है इसकी लीव, इसे जैसे ही टच करा. सी देखिए, सो ये एक मूवमेंट शो कर रही है. ये मूवमेंट जो शो कर रही है उससे क्या पता चल रहा है? जस्ट बिकॉज प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट्स, राइट? देखिए कैसे टच करने पे कैसे श्रिंक हो रही हैं लीव्स.
दिस इज़ द टच मी नॉट प्लांट्स, मे बी आप सबने देखा भी होगा. Now come to the third feature of the living things. Living things need food. All living things need food and water for their survival and growth. They get energy from the food to do different types of work. Different animals, including human beings, eat different types of food using their mouth. Birds use their beaks to eat grains, worms, etc. See, as living things need air to breathe, so they also need food and water for their survival. Food and water are also the basic need of the living things. सभी लिविंग थिंग्स को फूड चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है अपने सर्वाइवल और अपने ग्रोथ के लिए, राइट. ह्यूमन बींग्स नीड फूड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड लेते हैं ह्यूमन बींग्स. एंड बर्ड्स यूज़ देयर बीक्स. बीक्स क्या, जैसे चोंच होती है जो बर्ड की, उसे बीक बोला जाता है. बर्ड्स यूज़ देयर बीक्स टू ईट ग्रेन्स, वॉर्म्स एंड एक्सेट्रा. डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट टाइप्स के फूड खाते हैं. सिमिलरली ह्यूमन बींग्स डिफरेंट टाइप्स के फूड खाते हैं. In and all, living things need food. This is the third feature of living things. Animals cannot prepare their own food. They depend on plants and other animals for their food. See, जैसे ह्यूमन बींग्स अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, वैसे एनिमल्स अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते. They have to depend on the plants and other animals for their food. Plants also need food and water for their survival and growth. Plants भी living things हैं, तो उसे भी food और water चाहिए अपने survival और growth के लिए, right? They make their food from the air and water in the presence of sunlight. Plants को किसकी नीड होती है? सनलाइट की नीड होती है. प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड ऑक्सीजन देते हैं एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर के अंदर. दे नीड वाटर फॉर देयर ग्रोथ. अगर हम प्लांट्स को वाटर नहीं देंगे तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी, राइट. उन्हें सनलाइट भी चाहिए होती है, वाटर भी चाहिए होता है. दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ये जो प्लांट वाटर और सनलाइट लेते हैं, दे मेक देयर फूड फ्रॉम एयर एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एयर से और सनलाइट लेते हैं एंड वाटर इनटेक करते हैं. सो वो इससे वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ये उनका फूड होता है. और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. इट टेक प्लेस इन ग्रीन लीव्स. द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स इज कॉल्ड क्लोरोफिल. सी, ये सारा जो प्रोसेस होता है वो किस पे होता है? ग्रीन लीव्स में होता है, उनकी लीव्स में होता है. द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स. एक तरह का ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है लीव्स में, प्लांट्स की लीव्स में. उसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल. जिसकी मदद से कौन सा प्रोसेस होता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है. फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स. प्लांट्स अपने फूड बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? फोटोसिंथेसिस. There is a fact file. Some plants like pitcher plant and Venus flytrap eat insects. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें वाइल्ड प्लांट्स भी बोला जाता है, वो इंसेक्ट्स खाते हैं. Some plants like pitcher plants and Venus flytrap eat insects. ये इंसेक्ट्स को भी खाते हैं, राइट. एंड कुछ प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड एयर. सो आई होप यू गेट अबाउट व्हाट फोटोसिंथेसिस इज. फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट्स. एंड वो कौन प्रिपेयर करता है वो फूड? ग्रीन लीव्स के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है. उस ग्रीन पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल, राइट. सो नाउ कम टू द फोर्थ फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स ग्रो. सी, लिविंग थिंग्स है तो वो ग्रो भी करेंगे. वो फूड इनटेक किस लिए कर रहे हैं? अपनी ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, तो वो ग्रो करेंगे. ग्रोथ इज़ एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. दे ग्रो एंड कीप ऑन चेंजिंग विद द टाइम. A chick grows into a hen, a baby grows into an adult, and animals stops growing after some time, but they keep on changing their size and appearance. See, animals take food and water for their growth and survival, right? So वो जो grow करते हैं वो उनका फीचर है. लिविंग थिंग्स का इम्पोर्टेंट फीचर है that they grow.
बाय द टाइम लिविंग थिंग्स ग्रो करते रहते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हैन एग्स ले करती है, राइट। सो उस एग्स में से कौन निकलता है? चिक निकलता है, इसे हम चिक बोलते हैं। सो ये चिक किस में ग्रो हो जाता है? फिर बड़ा होके हैन में ग्रो हो जाता है। सिमिलरली ह्यूमन बींग्स में जब व्हेन अ बेबी बोर्न, सो with the passage of time his body shape, size grow, he become a child, like then after some time he become an adult, and after some time he become an old man, right। so ऐसे ही ये लाइफ साइकिल बोला जाता है, इसे ये लाइफ साइकिल चलती रहती है। Similarly in plants a small seedling comes out from a seed। हम एक सीड डालते हैं सॉइल के अंदर, वो सीड किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीडलिंग में। क्या बोलते हैं हम इसे? सीडलिंग। एंड दैट सीडलिंग ग्रोज इनटू अ सैपलिंग, और वो सीडलिंग किस में चेंज हो जाती है? सैपलिंग में चेंज हो जाती है। दैट सैपलिंग ग्रोज इनटू अ यंग प्लांट विच ग्रोज इनटू अ ट्री। प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ। सीड, हम सॉइल के अंदर सीड डालते हैं, वो सीड किस में चेंज हो जाती है? सीडलिंग में चेंज हो जाती है। व्हाट इज़ कॉल्ड? सीडलिंग। सीडलिंग किस में चेंज हो जाती है? सैपलिंग में चेंज हो जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं? सैपलिंग बोलते हैं। वो जो छोटा प्लांट निकलता है, छोटा सा बिल्कुल। एंड दैट सैपलिंग कन्वर्ट्स इनटू, और वी कैन से ग्रोज इनटू अ प्लांट। एक प्लांट आ जाता है, एक प्रॉपर प्लांट बन जाता है। वो एक छोटा सा सीड एक प्रॉपर प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, और वी कैन से ग्रो हो जाता है। और वो जो प्लांट होता है वो और ग्रो होते होते टाइम के साथ क्या बन जाता है? ट्री बन जाता है। और जो ट्री होते हैं वो अपनी पूरी लाइफ टाइम ग्रो करते ही रहते हैं, उसमें उनमें फ्रूट्स आ। सो दिस इज़ द फोर्थ फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स ग्रो, डैट लिविंग थिंग्स ग्रो विद द पैसेज ऑफ टाइम। टाइम के साथ साथ लिविंग थिंग्स ग्रो होते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है लिविंग थिंग्स का। ओके, नाउ लिविंग थिंग्स फील। सी, लिविंग थिंग्स को फील भी होता है जस्ट बिकॉज दे हैव सेंस ऑफ टच, राइट। अगर वो किसी चीज़ को टच करते हैं तो उन्हें फील होता है। अगर हम किसी हॉट चीज़ को टच करते हैं तो हमें गर्म फील होता है। कोल्ड को टच करते हैं तो हमें कोल्ड फील होता है। अगर हमें चोट लगती है तो भी हमें फील होता है। सो जो लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें हर चीज़ फील होती है। All living things can feel hot, cold, pain and happiness. A child feels pain when his finger is pricked by a thorn. See, pricked means चुभना। थॉर्न मीन्स कांटा जो होता है। अगर एक चाइल्ड को कांटा चुभ जाए तो उसे क्या फील होता है? उसे पेन फील होता है। इफ़ अ थॉर्न इज पियर्स्ड इन द फिंगर ऑफ अ चाइल्ड, देन व्हाट ही फील पेन। Our pet dog starts wagging its tail when we pet it. Wagging means move करना अपनी tail को। Starts moving its tail quickly when we pet it means जब हम उसे पैम्पर करते हैं, अपने डॉग को, अपने पेट को पैम्पर करते हैं, तो आपने देखा है वो अपनी टेल को इतनी जोर जोर से हिलाने लगता है, उसे वैगिंग बोलते हैं। सो सारे लिविंग थिंग्स को फील होता है, एनिमल्स को भी, प्लांट्स को भी, ह्यूमन बींग्स को भी। प्लांट्स को कैसे? जैसे मैंने आपको पहले बताया था, टच मी नोट। प्लांट को अगर टच करते हैं तो अपनी लीव्स को कैसे श्रिंक कर लेता है, तो उसे फील होता है। दैट्स वाई, जस्ट बिकॉज प्लांट इज़ अ लिविंग थिंग। सिमिलरली प्लांट्स ग्रो टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। अ टच मी नोट प्लांट क्लोजेस इट्स लीव्स व्हेन टच्ड। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस करना means giving birth to another one as same as they are। जैसे वो खुद होते हैं वैसे ही वो दूसरे क्रिएचर को बर्थ देते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। सो ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। अपने ही जैसे को वो क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं, रिक्रिएट करते हैं। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स लाइक काउज, डॉग्स, कैट्स एंड व्हेल्स गिव बर्थ टू देयर बेबीज। Birds and fish lay eggs. Babies come out of the eggs. A plant produces seed.
a seed grows into a new plant. See, जो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स होते हैं लाइक काउज, गोट्स, कैट, ये अपनी बेबीज़ को बर्थ करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं. और जो बर्ड्स और फिश होते हैं वो एग्स ले करते हैं. मीन्स उनके जो बेबीज़ होते हैं वो एग्स में से निकल के आते हैं, राइट. जैसे हैन एग्स ले करती है फिर उसमें से चिक निकलता है, ऐसे ही जो बर्ड्स एंड फिश होती है वो भी एग्स ले करते हैं. एंड द बेबीज कम आउट ऑफ द एग्स. अ प्लांट प्रोड्यूसेस सीड्स. सी, हम एक सीड डालते हैं, उसमें से सीडलिंग बनता है, फिर वो सैपलिंग बनता है, फिर वो प्लांट बनता है, देन ट्री बनता है. ट्री पे फ्रूट्स आते हैं, फ्रूट्स के अंदर सीड होते हैं, राइट. अगर हम दोबारा से उस सीड को लगा दें तो एक न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगा. सो अ प्लांट प्रोड्यूसेस सीड, अ सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट. सो दिस इज अबाउट द फीचर दैट द लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, रिक्रिएट करते हैं अपने ही जैसे एक क्रिएचर को. एंड कुछ एनिमल्स डायरेक्ट बर्थ देते हैं अपने, और कुछ एग्स ले करते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लिविंग थिंग्स. नाउ कम टू द नॉन लिविंग थिंग्स. द थिंग्स दैट हैव नो लाइफ ऑन देम आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स. जिनके अंदर कोई लाइफ नहीं होती, जो ब्रीथ नहीं कर सकते, फूड इनटेक नहीं कर सकते, वाटर नहीं ले सकते, वो मीन्स दे हैव नो लाइफ. So things that have no life in them are called non-living things. Example: bus, car, table, pen, clothes, almirah, etc. All these things cannot breathe, move, need food, grow, feel and reproduce. But they have a definite shape, size and weight as that of the living things. See, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं ना वो ब्रीथ कर सकते हैं, ना मूव कर सकते हैं, ना फूड इनटेक कर सकते हैं, ना ही वो ग्रो होते हैं, ना ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. बट दे हैव द डेफिनेट शेप, साइज एंड वेट. उनकी एक डेफिनेट शेप होती है, साइज होता है और एक वेट होता है. सो दिस इज अबाउट द नॉन लिविंग थिंग्स. नाउ कम टू द नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स. नेचुरल थिंग्स क्या होती है? नेचुरल थिंग्स कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स. जो हमारे नेचर में है वो कौन कौन सी थिंग्स हैं? लिविंग थिंग्स भी हमारे नेचर में और नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं. Plants and animals are living natural things, while sun, moon, clouds, star, air, water, stone, etc. are non-living natural things. See, जो sun, moon, clouds, air, water है, ये सब भी तो हमें नेचर से ही मिले हैं. सो बट ये नॉन लिविंग थिंग्स है, तो हम इनको क्या बोलेंगे? नॉन लिविंग नेचुरल थिंग्स. और जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो भी हमारे नेचर में होते हैं. सो बट वो क्या होते हैं? वो लिविंग थिंग्स होते हैं. दैट्स वाई वी कॉल देम द लिविंग नेचुरल थिंग्स. सो दिस इज़ अबाउट द नेचुरल थिंग्स. नाउ कम टू द मैन मेड थिंग्स. जो मैन द्वारा बनाई गई है, जो एक ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट करी है. द थिंग्स मेड बाय द मैन आर कॉल्ड द मैन मेड थिंग्स. लाइक जैसे कंप्यूटर ह्यूमन बीइंग्स द्वारा बनाया गया है, कार्स, क्लोथ्स, ये सब एक मैन ने बनाया है, एक ह्यूमन बीइंग ने बनाया है. दैट्स वाई वी कॉल देम द मैन मेड थिंग्स. ऑल मैन मेड थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स. House, aeroplane, car, pen, chair, clothes, etc. are some example of man-made things. ये सब नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, बट ये मैन द्वारा बनाई गई है. दैट्स वाई वी कॉल देम द मैन-मेड थिंग्स. So this is all about your chapter, living and non-living things. Now you have to read this chapter. Okay, so thank you and take care.